entropy? Entropy. No entropy, 0 point entropy. Huh? 0 point. I can add the external jar again. Huh? मैम 0 point. ये रामानुज भी ना. रामानुज क्या हुआ? I'm a 0 point entropy. Thank you. By no finite processes can entropy of a system reach to its 0 point value. Okay? In statistical mechanics, entropy is defined as S equals to K ln W. K is Boltzmann's constant. W is the thermodynamic probability. So statistical thermodynamic interpretation of third law is as T tends to 0, W should tend to 0, which means there is only one way that the lowest energy state can occur for a substance obeying third law. Okay? Consequences I have done with you all. I'll be sending you this today itself. Consequences, you have to just remember the consequences. No derivations are to be done. As I told you, introduction to Maxwell's laws, Maxwell's relations I'm not doing. In case you take the subject in TY, it will be done in statistical mechanics there. So Maxwell's thermodynamic relations I'm not doing, a lot of differentiation and all that. We are not doing derivations, and that's the reason why I am not doing this. Okay, you have 6 relations. They are known as Maxwell's thermodynamic relations. Now, what is Maxwell's thermodynamic relations? It is nothing but it relates temperature, pressure, volume, and entropy. They are certain partial equations which relate temperature, pressure, volume, and entropy. So, the first thermodynamical equation is del T by del V at constant entropy equals to del P by del S at constant volume. Okay. Similarly, second is del S by del V at constant temperature equals to del P by del T at constant volume. Can you see these two equations? Del T by del V at constant entropy. Del S by del V at constant temperature. जो यहाँ T था वो यहाँ S हो जाता है, जो यहाँ S है वो यहाँ T हो जाता है. Is this clear? You Yes, just ma'am. remember the relations. Then have a look here. This was minus, this is plus. Del P same. यहाँ पे because this was T, this was S. This time this is S, this will be T. Both at constant volume. Can you understand this? Just remember it the way it is. So it basically gives you relation between temperature, volume, pressure, and entropy. So del T by del V at constant entropy equals to minus del P by del S at constant volume. So you have T, V, P, S. S and V are constants. Next, S, V, P, T. Okay, T and V are constants. The third relation, del T by del P. Go back. ये V था, ये P हो रहा है. Okay, then equals to del P by del S. Yeah, so this was P, ये V हो रहा है. You understood this? Did you understand this? जो Yes, यहाँ V था वो P हो गया, जो यहाँ P था वो यहाँ V हो गया. नेगेटिव का पॉजिटिव है और ये S का S रहेगा, ये V का P होगा. This is third. Now the second relation and the fourth relation. Del S by del P. This was del S by del V. First relation में positive है, second में negative है, so negative. Okay. Now this is del P. This will become del V. Then this was del T the way it is, and this is del T the way it is. Temperature, pressure, entropy, pressure. This was temperature, volume, entropy, volume. Is this clear? You have 4 relations. Is it clear? Yes, ma'am. अरे भाई कान के अंदर आवाज जा रहा है क्या? Yes, So I ma'am. want you all to just remember the 4 relations. Just remember the 4 relations. The first one
was TV PS with a negative sign on the right hand side, TV PS SNV, okay, SV PT with TNV. Is it clear with a positive side on this side? Next, ये T था, third relation is del T by ये del T by del V था, ये P हो जाता है, okay, and del V by del S हो जाता है, लेकिन यहाँ पे del P by del S. Is this clear? I will be sending you the notes. It will be much more clear when you see them one after the other. Rather, I will show you one after the other. Have a look. See it. Del T by del V at S is equals to minus del P by del S at V. Okay. Then del यहाँ पे लिखने में गड़बड़ है कुछ. Anyways, when I send you the notes, the 4 equations, you can compare on your own. Okay. Hold on. हाँ बोलो. बोला बोला डाला है मैंने डाला है ग्रुप पे वो नोटिस रिवाइज सर्कुलर डाला है टीवाई के इस पे और मैं उनका 2:30 बजे को लेक्चर भी लेगी ना प्रैक्टिकल का उसमें भी होगी. एंड यू रेड द एसवाई ग्रुप. हाँ तो एसवाई का मैंने लिस्ट डाला है. लिस्ट तुम लोग को भी आया है. ओके तो मैं जो कल बोला वो करो. मैं थोड़ी देर में तेरे से और सीमा से बात. हाँ हाँ तो थोड़ी देर में मैं तेरे से और सीमा. हाँ 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 तो मैं 1:30 बजे को तेरे से और सीमा से बात करती हूँ. 1:30 बजे के बाद मतलब 2 बजे 2:45 तक मेरा लेक्चर है. अभी एसवाई नहीं हूँ तो लेक्चर खत्म करके तुम लोग से बात करती हूँ. आई ऑलरेडी इन्फॉर्म द स्टूडेंट्स टुमारो ऑनवर्ड्स 4 o'clock you will begin with their practicals for coming 5 to 6 days. ठीक है. ओके हेलो हेलो am I audible? Yeah, ma'am. Yes, ma'am. Okay, we were at Maxwell's thermodynamic relations. I repeat, see this. मैं इसको लाल कर देती हूँ या तो मैं सबको साथ में भी ला सकती हूँ. काम करती हूँ सबको साथ में लाती हूँ. एक वर्ड टॉपिक. Just give me 2 minutes. Profit and loss.
Yeah. Now can you all see it? Yes, ma'am. See here, we have TV, PS. TV, S common, PS, V common नहीं constant, sorry. Okay? So your TV, यहाँ पे T के जगह पे S आया, तो यहाँ पे S के जगह पे T आ गया. Clear? S के Yes, जगह पे T आया. Is this clear? अब look, यहाँ पे T था तो यहाँ पे S है, यहाँ पे S है तो यहाँ पे T होगा. Is this clear? अरे भैया, answer. हाँ. Yes, ma'am. Now see the third relation. Yes, ma'am. Third relation and the first relation. This is first, this is third. Del T by del P हो गया ये V था, ये P हो गया. ओके, ये P था, ये V हो गया. समझ में आया ना? और ये नेगेटिव था, ये पॉजिटिव. सो जो S था वो S यहाँ रहा और ये V और P याद कर सकोगे? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Now see the second and the fourth relation. Second relation में नेगेटिव साइन नहीं था, फोर्थ में नेगेटिव. जो V था वो P हो गया, जो P था वो V होगा. यहाँ पे भी वही हुआ ना, V था P हो गया, P था V होगा. यहाँ पे V था वो P होगा और P था वो V होगा. क्लियर? Yes, Yes, ma'am. समझ में आया? Can you now remember the relations? Yes. Yes, ma'am. All of you? So, I go back to this. Now I will deal with Clausius-Clapeyron equation. Now, what is this Clausius-Clapeyron equation? Remember I said that change of state means that the temperature remains constant. The substance is changing from solid to a liquid or a liquid to a gas. बोला था? Yes, ma'am. जब मैंने एंट्रोपी किया था, entropy heat is used in two ways. The first way is either to change the temperature of the substance. So you have ms ln of T2 by T1, change in entropy. Remember this? Remember it or no? When water at 0 degrees changes to water at 100 degrees. Yes, ma'am. Yes, ma'am. The second way in which heat is used for changing the phase or the state of the substance at a constant temperature. Meaning what ice at 0 degrees becoming water at 0 degrees. Ice at 0 degrees becoming water at 0 degrees means what? That you have a change in the phase. Hello? Yes, who's this? Yeah. Okay. PRN number is not the point. You wish to apply M what? There's no MA in history in National College. Kindly contact the college office, please. There is college office on. Kindly contact the college office. I'm in my lecture. Hello? So heat is used to change the phase of the substance. So when a phase of a substance changes during melting, that is solid to liquid or vaporization, melting में solid to liquid or in vaporization liquid to vapor or in sublimation solid to vapor, the temperature and the pressure both remain constant. बराबर है कि नहीं? जब आइस वाटर बनता है at 0 डिग्री, हम प्रेशर नहीं देते, वो अपने आप मेल्ट होता है कि नहीं? Yes. Such a change of phase is as in this diagram. Okay, what is happening? Solid
to liquid, this is known as the fission curve. Liquid to vapor, this is known as a vaporization curve. And solid to vapor directly, जो कैम्फर में होता है, अपन कपूर जलाते हैं ना, वो सॉलिड होता है यार, कैम्फर दिया में जलाते हैं। Yes, ma'am. उसको जब हम जलाते हैं वो पानी नहीं होता, हमको उसका पानी स्टेट दिखाई नहीं देता, वो सीधा धुआं निकलता है, राइट? सो solid to vapor, that's sublimation. So there is a point where all these three curves meet, and this is known as the triple point. At triple point, I can see the substance in all the three states. This is known as the triple point. The Clausius-Clapeyron equation, or simply the Clapeyron equation, represents a relationship between the saturation temperature, the saturation pressure, and the specific heat of the pure substance during the phase change. This equation helps in calculating the slope of the curve. So, this relation can be derived from the first law of thermodynamics with the help of Maxwell's relation. Abhi, is work I will be showing you a video which will explain this in more detail to you all, okay? And then I will discuss it again. What am I presenting to you all? Nothing, na? कुछ दिख रहा है क्या? No. No, ma'am. तो बोलता है I'm presenting. No. Now this is something in Hindi, okay? Hindi and English mix. Listen to it carefully. Can you hear or see? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पंकज फिजिक्स गुलाटी। स्टूडेंट्स, आपको इस चैनल पर ना केवल ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन फिजिक्स के टॉपिक्स की सबसे आसान एक्सप्लेनेशन देखने को मिलती है, बल्कि आपको साथ के साथ ये भी बताया जाता है कि आपको एग्जाम में क्या और कैसे लिख के आना है, ताकि आप सिर्फ एक वीडियो देख के ही अपने नोट्स बना सकें और एग्जाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकें। तो स्टूडेंट्स, आज ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पाइए नोटिफिकेशन मेरी नई वीडियो का सबसे पहले। इसी कैटेगरी में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे बीएससी थर्ड सेम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग एंड थर्मोडायनामिक्स यूनिट 4 के सबसे पहले टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन, जिसको हम फर्स्ट लेटेंट हीट इक्वेशन नाम से भी जानते हैं। तो स्टूडेंट्स, क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन क्या है? देखिए स्टूडेंट्स, ये एक प्रकार की इक्वेशन है जो हमें बताती है कि अगर हम किसी सब्सटेंस का प्रेशर जो है इंक्रीज करते हैं तो सब्सटेंस के बॉइलिंग पॉइंट या फिर आप हेलो, Yes, ma'am. Yes, ma'am. ऑडियो ऑन है क्या? हाँ, मैम. Yes, ma'am. इसका ऑडियो, सब लोग अपना ऑडियो बंद करो, मैं भी बंद कर रही हूँ और मैं वो वीडियो दिखा देती हूँ, ओके? Okay, ma'am. आप कह सकते हैं कि फ्रीजिंग पॉइंट में क्या चेंज आता है, ये इक्वेशन हमें ये बताती है। इस इक्वेशन को सबसे पहले ट्राई किया था 1834 में क्लैपेरॉन ने, यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ कार्नोट साइकिल। उसके बाद क्लॉसियस ने 1850 में इसके ऊपर इंडिपेंडेंटली काम किया, इसलिए इस इक्वेशन को जाना जाता है क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन के नाम से। तो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं कि अगर आपको क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आप स्टार्टिंग के इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे, आप क्या बताएंगे कि क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन क्या होती है। आइए वो देख लेते हैं। The equation which deals with the change in boiling point or the freezing point of a substance with increase in pressure is called Clausius-Clapeyron equation। एक ऐसी इक्वेशन जो हमें ये बताती है कि किसी सब्सटेंस का प्रेशर अगर इंक्रीज किया जाए तो उसके बॉइलिंग पॉइंट या फिर फ्रीजिंग पॉइंट में क्या चेंज आता है, उस इक्वेशन को हम कहते हैं Clausius-Clapeyron इक्वेशन एंड इज गिवन बाय। और Clausius-Clapeyron इक्वेशन जो है वो कुछ इस प्रकार की होती है, dp by dt is equal to L
बाई टी V2 माइनस V1। यहाँ पर dp बाई dt क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पर dp बाई dt रिप्रेजेंट कर रहा है चेंज ऑफ प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। L क्या है यहाँ पर, L है लेटेंट हीट। देखिए स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट का कंसेप्ट लेके चलेंगे। हम यहाँ पर किसी सब्सटेंस को बॉईल करेंगे तो यहाँ पर L जो है वो लेटेंट हीट और वेपोराइजेशन माना जाएगा। हम यहाँ पर एक लिक्विड कंसिडर करेंगे, उसको बॉईल करके उसको वेपर्स में कन्वर्ट करेंगे तो उस केस में L जो है यहाँ पर लेटेंट हीट और वेपोराइजेशन होगा। T टेम्परेचर है, V2 माइनस V1 है चेंज इन वॉल्यूम, V1 है लिक्विड का वॉल्यूम, V2 है वेपर्स का वॉल्यूम। और ये ऑब्वियस है कि जो वेपर्स होते हैं उनका वॉल्यूम जो है वो लिक्विड के वॉल्यूम से ज्यादा होता है, तो V2 जो है वो V1 से ग्रेटर देन होगा। तो स्टूडेंट्स, ये है हमारी क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन जिसको हमें ड्राइव करना है। इसके बाद 2 लाइंस हम और लिखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि इस टॉपिक में आपको डायग्राम क्या बनाना है और कैसे आगे आपको इस टॉपिक में बढ़ना है। तो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं कि आप इस टॉपिक में और क्या ऐड करके आएंगे। दिस इक्वेशन वाज फर्स्ट ऑफ ऑल ड्राइव्ड बाय क्लैपेरॉन इन 1834 यूजिंग द कांसेप्ट ऑफ कार्नोट साइकिल and later in 1850 Clausius independently worked on it and hence it is known as Clausius-Clapeyron equation। ये जो हमने पिछले सेक्शन में इक्वेशन लिखी थी dp by dt is equal to L by T V2 minus V1, ये सबसे पहले ड्राइव की थी इक्वेशन क्लैपेरॉन ने 1834 में कार्नोट साइकिल का कंसेप्ट यूज किया गया था। इस इक्वेशन को ड्राइव करने के लिए हम कार्नोट साइकिल का कंसेप्ट ही यूज करेंगे। जब हम डेरिवेशन करेंगे और यहाँ पर डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो आप देखेंगे कि कार्नोट साइकिल का कैसे यूज हो रहा है यहाँ पर। और 1850 में क्लॉसियस ने इसके ऊपर इंडिपेंडेंटली काम किया था, इसलिए इन दोनों साइंटिस्ट को मिला के इस इक्वेशन का नाम पड़ा क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन। देखिए स्टूडेंट, जब भी हम किसी सब्सटेंस का प्रेशर चेंज करते हैं तो उसके बॉइलिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट में चेंज आता ही आता है। फॉर एग्जांपल, वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेल्सियस है, बट वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस कब होता है, जब हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm के बराबर हो, मींस 1 एटमॉस्फेयर के बराबर हो। अगर आप प्रेशर बढ़ाएंगे तो बॉइलिंग पॉइंट जो है वाटर का वो इंक्रीज हो जाता है। इसी प्रकार से जो फ्रीजिंग पॉइंट है वाटर का जो 0 डिग्री सेल्सियस होता है, बट वो कब होता है, जब हमारा प्रेशर 1 atm के बराबर होता है। जब आप प्रेशर डिक्रीज करते हैं तो फ्रीजिंग पॉइंट बढ़ जाता है वाटर का, और इसी प्रकार से जब आप प्रेशर को डिक्रीज करते हैं तो फ्रीजिंग पॉइंट बढ़ जाता है एंड वाइस वर्सा। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार हम कह सकते हैं जो बॉइलिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट होते हैं किसी भी सब्सटेंस के, वो प्रेशर के चेंज होने के साथ, प्रेशर के इंक्रीज होने के साथ चेंज हो जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसी चीज को हम यहाँ पर आज ड्राइव करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आगे बढ़ने से पहले, आगे की थ्योरी लिखने से पहले आपको कुछ यहाँ पर समझना होगा विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। तो स्टूडेंट्स, आगे का टॉपिक समझने के लिए, आगे का थ्योरी पोर्शन समझने के लिए सबसे पहले आपको एक लिक्विड कंसीडर करना होगा। ये हमने लिक्विड लिया है किसी भी कंटेनर के अंदर, ये हमने पिस्टन फिट किया हुआ है। यहाँ पर हमने यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस लिया है इन लिक्विड से। देखिए स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्रेशर जो है वो डिक्रीज करेंगे, जिसकी वजह से जो वॉल्यूम है लिक्विड का वो बढ़ जाएगा। पहले वॉल्यूम इतना था, यहाँ पर देखिए यहाँ पर वॉल्यूम जो है बढ़ चुका है, और प्रेशर जो है हमने P मान लिया कि इस स्टेज में प्रेशर P है लिक्विड का और वॉल्यूम V1 है। प्रेशर जो है यहाँ से यहाँ जाते हुए कम हुआ है और वॉल्यूम यहाँ से यहाँ जाते हुए इंक्रीज हुआ है। तो स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, इस लिक्विड को बॉईल करना शुरू करेंगे, जिसकी वजह से यहाँ पर लिक्विड जो है वो वेपर में कन्वर्ट होना शुरू होगा। कुछ पार्ट जो है लिक्विड का वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा और बाकी पार्ट जो है वो लिक्विड स्टेट में ही रहेगा। बट यहाँ पर प्रेशर जो है वो कांस्टेंट रहेगा, बट वॉल्यूम जो है यहाँ पर वो इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर स्टेट चेंज हो रही है सब्सटेंस की। तो स्टूडेंट्स, हम और ज्यादा इसको बॉईल करेंगे तो और ज्यादा वेपर्स बनेंगे, लिक्विड थोड़ा और कम हो जाएगा, वेपर थोड़े और ज्यादा हो जाएंगे। प्रेशर यहाँ भी कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि जब भी किसी सब्सटेंस की स्टेट चेंज होती है तो प्रेशर जो है वो कांस्टेंट रहता है। तो यहाँ भी प्रेशर P था, यहाँ भी प्रेशर P था, पर वॉल्यूम जो है यहाँ पर बढ़ चुका है। और एक ऐसी स्टेज आ जाएगी जब पूरे का पूरा लिक्विड जो है वो वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये पूरा यहाँ पर वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो चुका है। प्रेशर यहाँ पर P रहेगा और वॉल्यूम यहाँ बढ़कर V2 हो जाएगा। तो यहाँ पर वॉल्यूम V1 से शुरू किया था हमने लिक्विड पर, और यहाँ पर जब सारे वेपर्स में कन्वर्ट हो गया लिक्विड, तो यहाँ पर वॉल्यूम जो है V2 हो गया। V2 हमारा फाइनल वॉल्यूम है, V1 हमारा इनिशियल वॉल्यूम है। तो स्टूडेंट्स, आप डायग्राम में क्लियरली देख सकते हैं कि इस स्टेज में जो हमारा सब्सटेंस है वो प्योरली लिक्विड स्टेट में था, और इस स्टेज में आकर सब्सटेंस जो है वो पूरा वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो गया है। और यहाँ पर इसके और इसके बीच में जो दो स्टेट्स हैं, यहाँ पर सब्सटेंस जो है वो लिक्विड स्टेट में भी है, वेपर स्टेट में भी है। इसी प्रोसेस को हम यहाँ पर पीवी डायग्राम के ऊपर शो करेंगे। हम मान लेंगे जो हमारा सब्सटेंस है वो कांस्टेंट टेम्परेचर T के ऊपर है। तो स्टूडेंट्स, मान लीजिए प्रेशर यहाँ पर था, जब हमने इसको
लिक्विड यहाँ पर कंसिडर किया तो प्रेशर यहाँ पर था, इस केस में प्रेशर यहाँ पर था। फिर हमने प्रेशर डिक्रीज किया, प्रेशर डिक्रीज करेंगे तो क्या होगा, वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज होगा, वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज होगा, नीचे की तरफ आएगा कर्व इस तरह से। और इस पॉइंट पर आके ये मान लेते हैं ए पॉइंट है, ये हमारा बी पॉइंट है। बी पॉइंट पर यहाँ पर पहुंच गए, अभी लिक्विड स्टेट में है और प्रेशर यहाँ पर बी पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग जो प्रेशर है वो पी है, ये वाली स्टेट की हम बात कर रहे हैं। और बी पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग जो वॉल्यूम है हमारा सब्सटेंस का, जो लिक्विड स्टेट में है, उसका वॉल्यूम है V1। अब हम इसको क्या करेंगे, बॉयल करना शुरू करेंगे। बॉयल होगा सब्सटेंस और ये वेपर्स में कन्वर्ट होना शुरू होगा, बट प्रेशर जो है वो कांस्टेंट रहेगा, बढ़ता रहेगा, क्योंकि ये वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है। यहाँ पर देखिए वॉल्यूम बढ़ रहा है, यहाँ वॉल्यूम बढ़ रहा है, बट प्रेशर जो है वो कांस्टेंट रह रहा है। और एक पॉइंट ऐसा आएगा जब सारे का सारा सब्सटेंस जो है वो वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो चुका होगा, उसको हम C पॉइंट देते हैं। और इस केस में जो वॉल्यूम होगा लास्ट केस में, कितना वॉल्यूम है यहाँ पर, V2 वॉल्यूम है। प्रेशर कितना है लास्ट स्टेज में, P ही है, कांस्टेंट प्रेशर है। इसके बाद अगर आप प्रेशर को डिक्रीज करते हो तो वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज करता है कुछ इस प्रकार से। इस स्टेज के बाद अगर आप प्रेशर को डिक्रीज करोगे तो वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज होगा इस प्रकार से। तो स्टूडेंट्स, ये हमारी एक आइसोथर्मल कर्व मिल चुकी है हमें ABCD, और ये कांस्टेंट टेम्परेचर T के ऊपर हमें मिली है। ये T टेम्परेचर के ऊपर हमें आइसोथर्म मिल चुका है PV डायग्राम के ऊपर। आइसोथर्म वो कर्व होती है PV डायग्राम में जो कांस्टेंट टेम्परेचर पर ड्रॉ की जाती है। तो स्टूडेंट्स, पीवी डायग्राम के ऊपर जो बी पॉइंट है वो इस सिचुएशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, जहां पर प्रेशर P है और वॉल्यूम V1 है। यहाँ पर सब्सटेंस प्योरली लिक्विड स्टेट में है। सी पॉइंट कौन सी चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, इस स्टेज को रिप्रेजेंट कर रहा है जब पूरा का पूरा लिक्विड जो है वो वेपर में कन्वर्ट हो चुका है और प्रेशर यहाँ पर P है और वॉल्यूम जो है वो बढ़कर V1 से बढ़कर V2 हो चुका है। तो स्टूडेंट्स, बी और सी के बीच वाली जो स्पेस है वो इन दोनों पिक्चर्स के द्वारा रिप्रेजेंट की गई है, जिसमें जो सब्सटेंस है वो लिक्विड एंड वेपर दोनों स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है। तो बीसी उस स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है जहां पर सब्सटेंस जो है वो लिक्विड स्टेट में भी है, वेपर स्टेट में भी है। तो स्टूडेंट्स, इसी प्रकार से अगर हम एक और आइसोथर्म ड्रॉ करें पीवी डायग्राम के ऊपर फॉर अ डिफरेंट टेम्परेचर, जो कि T टेम्परेचर से कम होगा, तो उस केस में आपको ऐसा ही एक कर्व दोबारा देखने को मिलेगा, बट वो कर्व थोड़ा नीचे से शुरू होगा। Hello. Yes, ma'am. Hello. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. Is it clear Yes, till ma'am. here? Yes, Yes, ma'am. Hello. Yes, ma'am. Yes, Is ma'am. it clear till here? Yes, Yeah. ma'am. Yes, ma'am. Kindly put your mics on mute, please. And pay attention. I'll be asking you questions. होगा आपको इस प्रकार का कर्व देखने को मिलेगा, जैसे मैं ड्रॉ कर रहा हूं यहाँ पर। स्टेट में भी है, वेपर स्टेट में भी है। तो स्टूडेंट्स, इसी प्रकार से अगर हम एक और आइसोथर्म ड्रॉ करें पीवी डायग्राम के ऊपर फॉर अ डिफरेंट टेम्परेचर, जो कि T टेम्परेचर से कम होगा, तो उस केस में आपको ऐसा ही एक कर्व दोबारा देखने को मिलेगा, बट वो कर्व थोड़ा नीचे से शुरू होगा। आपको इस प्रकार का कर्व देखने को मिलेगा, जैसे मैं ड्रॉ कर रहा हूं यहाँ पर। ये कर्व होगा EFGH, जो कि सेम प्रोसेस के लिए ड्रॉ किया गया है, बट यहाँ पर टेम्परेचर हमने कितना कर दिया है, कम कर दिया है। यहाँ पर टेम्परेचर जो हमने अपनी बार कर दिया है T-DT, यहाँ लिख देता हूं मैं। ये कर्व किसके लिए है, या आइसोथर्म किसके लिए, T-DT टेम्परेचर के लिए। तो आपको दो आइसोथर्म ड्रॉ करने हैं पीवी डायग्राम के ऊपर, एक T टेम्परेचर के लिए, T-DT टेम्परेचर के लिए। जो F स्टेज पर प्रेशर है यहाँ पर वो है हमारा P-DP। तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है, ये लाइन जो है P-DP प्रेशर को कॉरस्पॉन्ड कर रही है प्रेशर एक्सिस के ऊपर। तो स्टूडेंट्स, हम क्या करते हैं, B को F से ज्वाइन कर देते हैं इस तरह से, और ये जो G पॉइंट था, ये वाला पॉइंट यहाँ पे लिख देता हूँ G में, जो इसको C को G से ज्वाइन कर देते हैं। और ये जो हमने यहाँ पर परपेंडिकुलर यहाँ पर ड्रॉ किए हुए हैं, इसको हम दे देते हैं L पॉइंट, इस पॉइंट को, और इस पॉइंट को दे देते हैं M पॉइंट। जैसे पिछली कर्व में हमने बात की थी, उसी प्रकार से F पॉइंट के ऊपर सब्सटेंस जो है वो लिक्विड स्टेट में, और G पॉइंट के ऊपर वेपर स्टेट में, और F और G के बीच में जो सब्सटेंस है
वो वेपर एंड लिक्विड स्टेट में दोनों में एग्जिस्ट कर रहा है। तो स्टूडेंट्स इसी चीज को ध्यान में रखते हुए आइए देखते हैं कि आप इसकी थ्योरी में आगे और क्या लिख के आएंगे। ऑन पीवी डायग्राम लेट एबीसीडी represents an isothermal temperature T Kelvin for unit mass of substance so that along AB it is in liquid state। PV डायग्राम के ऊपर सबसे पहले का आपको आइसोथर्मल ड्रॉ करना है जो कि T Kelvin पर ड्रॉ करना है। A B C D, A से लेके B तक ये A पॉइंट है, समझ लीजिए ये हमारी A पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है ये डायग्राम, और ये B पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। इन दोनों स्टेज में देखिए सब्सटेंस कौन सी स्टेट में, लिक्विड स्टेट में है। तो अलोंग AB जो है सब्सटेंस लिक्विड स्टेट में होगा। उसके बाद एज द प्रेशर इज ग्रेजुअली डिक्रीज द वॉल्यूम इंक्रीजेस, उसके बाद आप क्या करोगे, प्रेशर थोड़ा सा डिक्रीज करोगे, प्रेशर जो है वो डिक्रीज करोगे, जिसकी वजह से वॉल्यूम जो है वो यहाँ से यहाँ पहुंच जाएगा। वॉल्यूम एक्सिस देखिए इस तरफ जा रही है तो वॉल्यूम जो है यहाँ पर बढ़ेगा। अलोंग BC चेंजिंग स्टेट टेक प्लेस, BC में जो सब्सटेंस का जो स्टेट है वो चेंज होगा। यहाँ पर लिक्विड स्टेट में था सब्सटेंस, यहाँ पर वेपर स्टेट में आ जाएगा, और B और C के बीच में सब्सटेंस जो है वो लिक्विड एंड वेपर स्टेट एग्जिस्ट करेगा। एंड द सब्सटेंस एग्जिस्ट बोथ इन लिक्विड एंड वेपर स्टेट। BC के अलोंग सब्सटेंस जो है वो वेपर दोनों स्टेट्स में एग्जिस्ट करेगा। तो स्टूडेंट्स इतना लिखने के बाद आप इस टॉपिक में और क्या ऐड करके आएंगे वो हम देखेंगे आने वाले सेक्शंस के अंदर। तो स्टूडेंट्स आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आप इस टॉपिक की थ्योरी में और क्या आगे ऐड करके आएंगे। द प्रेशर P एंड टेम्परेचर T रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट अलोंग BC के अलोंग प्रेशर जो है वो P रहेगा और टेम्परेचर जो है वो T रहेगा। BC के अलोंग सब्सटेंस की जो स्टेट है वो चेंज हो रही है, सब्सटेंस लिक्विड से वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है। एट C द सब्सटेंस इज कंप्लीटली इन वेपर स्टेट, और C पॉइंट पर आगे सब्सटेंस जो है वो कंप्लीटली वेपर स्टेट में आ जाएगा। एंड अलोंग CD इट रिमेन्स इन वेपर स्टेट, और CD के अलोंग वो वेपर स्टेट में ही रहेगा, और यहाँ पर प्रेशर डिक्रीज होगा और वॉल्यूम जो है वो बढ़ेगा। सिमिलरली EFGH be another isothermal for unit mass of same substance at temperature T minus DT Kelvin। अगर आप सेम सब्सटेंस के यूनिट मास के लिए एक और आइसोथर्मल ड्रॉ करते हैं एक लोअर टेम्परेचर पर जिसकी वैल्यू है T minus DT Kelvin, तो आपको कुछ इस प्रकार की कर्व देखने को मिलेगी EFGH इस PV डायग्राम के ऊपर। बिल्कुल सेम शेप की होगी जैसे ABCD थी, पर ये इसकी नीचे होगी, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अगेन द सब्सटेंस विल बी इन लिक्विड स्टेट अलोंग EF के अलोंग सब्सटेंस क्या होगा, लिक्विड स्टेट में होगा। उसके बाद FG के अलोंग सब्सटेंस लिक्विड एंड वेपर दोनों स्टेट में होगा, GH के अलोंग जो है सब्सटेंस वेपर स्टेट में होगा। सेम वही चीज आपने दोबारा लिखनी है। उसके बाद बोथ इन लिक्विड एज वेल एज वेपर स्टेट अलोंग FG के अलोंग सब्सटेंस लिक्विड एंड वेपर स्टेट दोनों में एग्जिस्ट करेगा। एंड इन वेपर स्टेट अलोंग GH और GH के अलोंग सब्सटेंस जो है वो वेपर स्टेट में होगा। लेट Cl एंड Bm रिप्रेजेंट टू एडियाबैटिक्स थ्रू C एंड B। अब हमें क्या करना है, इन दोनों कर्व्स के ऊपर एडियाबैटिक्स ड्रॉ करने हैं। एक एडियाबैटिक जो है हमने यहाँ से ड्रॉ करना है C से, जिसका नाम दिया हमने Cl, और B से ड्रॉ करना है जिसको हमने नाम दिया है Bm। तो स्टूडेंट्स आगे का लेवल ऑफ टेम्परेचर अलोंग एडियाबैटिक इज dt। देखिए स्टूडेंट पीवी डायग्राम के ऊपर एडियाबैटिक वो कर्व होती है जिसमें सब्सटेंस का टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज होता है। जैसे कि C पॉइंट पर सब्सटेंस का टेम्परेचर कितना है, T है। L पॉइंट पर कितना सब्सटेंस का टेम्परेचर, ये कर्व कौन सी लाइन कौन सा टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रही है, T माइनस dt टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रही है। L पॉइंट पर सब्सटेंस का टेम्परेचर है T माइनस dt। तो अगर आप T में से T माइनस dt माइनस करेंगे तो dt आपको मिलेगा, मीन C से L की तरफ आते हुए सब्सटेंस का जो टेम्परेचर है वो dt अमाउंट से चेंज होगा, और सेम बात जो है वो B से लेके M तक आते हुए लागू होगी। B से M तक आते हुए सब्सटेंस का टेम्परेचर जो है वो dt अमाउंट से कम होगा, क्योंकि जो B पॉइंट है वो T टेम्परेचर पर है और M पॉइंट जो है वो T माइनस dt टेम्परेचर पर है। तो स्टूडेंट्स इतना लिखने के बाद आप इस टॉपिक में और क्या ऐड करके आएंगे वो हम देखेंगे आने वाले सेक्शंस के अंदर। तो स्टूडेंट्स आइए आगे पढ़ते हैं। अब आगे पढ़ने से पहले आप इस कर्व को ध्यान से देखना होगा, इस साइकिल को ध्यान से देखना होगा। BCLMB ये वो साइकिल है जिसमें दो आइसोथर्मल्स हैं आपके पास, BC आइसोथर्मल एंड LM आइसोथर्मल, और दो एडियाबैटिक्स हैं CL एंड MB। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर दो आइसोथर्मल्स हैं और दो एडियाबैटिक्स हैं इस साइकिल के अंदर। तो ये साइकिल कौन सी साइकिल है, ये साइकिल है कार्नोट साइकिल। कार्नोट साइकिल के अंदर चार प्रोसेसेस होती हैं, आइसोथर्मल एक्सपेंशन, एडियाबैटिक एक्सपेंशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन एंड एडियाबैटिक कंप्रेशन। ये एक कार्नोट साइकिल को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसके ऊपर बेस्ड होती है वर्किंग कार्नोट इंजन की। तो यहाँ पर हम मान सकते हैं कि कार्नोट इंजन वर्क कर कार्नोट साइकिल है BCLMB, और यहाँ पर जो कार्नोट इंजन है वो दो टेम्परेचर्स के बीच में काम कर रहा है, दो टेम्परेचर लिमिट्स के बीच में काम कर रहा है। एक है टेम्परेचर T, ये सोर्स का टेम्परेचर हम मान लेते हैं,
और एक है लोअर टेम्परेचर टी माइनस डी टी, जिसको हम सिंक का टेम्परेचर मान लेते हैं। तो कार्नोट इंजन जो है वो एक गिवन टेम्परेचर लिमिट्स के बीच में काम करता है, सोर्स का टेम्परेचर एंड सिंक का टेम्परेचर। तो ये सोर्स का टेम्परेचर मान लेते हैं, सोर्स का टेम्परेचर हमेशा सिंक के टेम्परेचर ज्यादा होता है, तो टी को हमें सोर्स का टेम्परेचर मानना पड़ेगा और ये हमें सिंक का टेम्परेचर मानना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स मैंने BCLM कर्व को अलग से ही शो कर दिया है। हेलो हेलो, Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. इज इट गेटिंग क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. मैं तुमको बताती हूँ इसमें से तुम लोगों को क्या, Yeah, ma'am. first understand this, okay? It is just a small thing, and after this I will re-explain and give you what is to be remembered, okay? Okay, ma'am. Ma'am. यहाँ पर आप चाहे तो इसी में ही एक्सप्लेन कर सकते हैं, मैंने आपको अच्छे से समझाने के लिए यहाँ पर अलग से ड्रॉ कर दिया है। तो स्टूडेंट्स आइए आगे देखते हैं। नाउ BCLMB रिप्रेजेंट्स अ कंप्लीट कार्नोट साइकिल फॉर एन इंजन वर्किंग बिटवीन टेम्परेचर्स T एंड T माने DT ऑफ सोर्स एंड सिंक रिस्पेक्टिवली। सो हमारा जो ये साइकिल है BCLMB, ये एक कंप्लीट कार्नोट साइकिल को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि एक रिवर्सिबल साइकिल है, और ये उस इंजन के कार्नोट साइकिल को रिप्रेजेंट कर रहा है जो इन टेम्परेचर्स के बीच में काम कर रहा है, T एंड T माइनस DT, जहां पर T सोर्स टेम्परेचर है, T माइनस DT जो है वो सिंक का टेम्परेचर है। दिस कार्नोट इंजन वर्क्स इन फॉलोइंग स्टेप्स। जिस कार्नोट इंजन की कार्नोट साइकिल ये है BCLMB, ये 4 स्टेप्स में काम करता है। वो हम कार्नोट इंजन के बारे में पढ़ते आ रहे हैं पिछले 3rd यूनिट में। तो कार्नोट इंजन में और कार्नोट साइकिल वाले वीडियो में हमने देखा था कि कार्नोट साइकिल के अंदर 4 प्रोसेसेस इन्वॉल्व होती हैं। एक होती है आइसोथर्मल एक्सपेंशन, एडियाबैटिक एक्सपेंशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन, एडियाबैटिक कंप्रेशन। इन चारों प्रोसेसेस को आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। यहाँ पर पॉइंट स्टार्टिंग विद वॉल्यूम V1 एट B पॉइंट पर वॉल्यूम कितना है सब्सटेंस का? V1 है। द सब्सटेंस इज अलाउड टू एक्सपेंड आइसोथर्मली एट कांस्टेंट टेम्परेचर T, और यहाँ पर सब्सटेंस को एक्सपेंड किया जा रहा है, उसके वॉल्यूम को V1 से V2 किया जा रहा है एट कांस्टेंट टेम्परेचर T, क्योंकि BC के अलोंग जो टेम्परेचर है, BC के अलोंग जो टेम्परेचर है वो T है, कांस्टेंट टेम्परेचर है यहाँ पर। और यहाँ वॉल्यूम B है B पॉइंट पर, और यहाँ पर वॉल्यूम V2 है C पॉइंट पर। तो यहाँ पर एक्सपेंशन हो रही है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो रही है हमारे सब्सटेंस की। द सब्सटेंस कंप्लीटली चेंजेस फ्रॉम लिक्विड स्टेट टू वेपर्स, और पर इस BC के अलोंग यहाँ पर सब्सटेंस जो है वो कंप्लीटली लिक्विड से वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है। द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब फॉर दिस चेंज ऑफ स्टेट इज L। यहाँ पर कितनी हीट एब्जॉर्ब करेगा वो सोर्स से हमारा सब्सटेंस, कितनी हीट एब्जॉर्ब करेगा, क्योंकि यहाँ पर जो स्टेट है वो लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हो रही है। तो सब्सटेंस ने यूनिट मास का लिया है, तो यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस को लिक्विड से वेपर स्टेट कन्वर्ट करने के लिए जितनी हीट चाहिए होती है एट कांस्टेंट टेम्परेचर, उस हीट को हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, मींस जिसको हम L से डिनोट करते हैं। मींस यहाँ पर सब्सटेंस कितनी हीट। मैम बोलो। मैम थोड़ा क्वालिटी बढ़ाओगे, इधर ऑलरेडी ब्लर आ रहा है। क्या ब्लर है बेटा? मेरा स्क्रीन ब्लर आ रहा है मैम, थोड़ा क्वालिटी बढ़ाओगे आप इस वीडियो का? कैसा बढ़ाते बाय द वे? मैम वो लाइट का एब्जॉर्ब करेगा सोर्स से, अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब सेटिंग्स में बढ़ेगा। लेटेंट हीट ऑफ क्या वेपोराइजेशन करना के पड़ेगा? बराबर कॉर्नर में होगी। डॉट्स होंगे। Where L is latent heat of vaporization, में जहाँ dots पर नहीं L दिख जो रहे है वो ना। latent heat of vaporization है, जो हीट किसी भी यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस को लिक्विड से वेपर स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए चाहिए होती है कांस्टेंट टेम्परेचर, कुछ हो रहा है क्या? लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट प्रोसेस कंप्लीट हो मैम गई है, तो बाकी थोड़ा बहुत ही ब्लर है मैम, ठीक है चलेगा मैम। एक्सप्लेन करेंगे आने वाले सेक्शंस के अंदर। तो स्टूडेंट्स आइए डिस्कस करते हैं बाकी बचे हुए प्रोसेसेस को। सेकंड प्रोसेस होगी द सब्सटेंस इज नाउ अलाउड टू एक्सपेंड एडियाबैटिक अलोंग Cl। अब जो हमारा सब्सटेंस है उसकी जो एक्सपेंशन होगी वो एडियाबैटिक एक्सपेंशन होगी, वो होगी Cl के अलोंग। C पर टेम्परेचर कितना है? T है। L पर टेम्परेचर कितना है? T माइनस dt है। मींस एडियाबैटिक एक्सपेंशन के दौरान जो सब्सटेंस का टेम्परेचर है वो T से T माइनस dt की तरफ फॉल करेगा, और C टेम्परेचर पर प्रेशर कितना है? P है, और L पॉइंट पर प्रेशर कितना है? P माइनस dP है। तो हमने प्रेशर P से P माइनस dP कर दिया है, जिसकी वजह से सब्सटेंस की एक्सपेंशन होगी, बट यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज होगा, और जो एक्सपेंशन होगी वो एडियाबैटिक एक्सपेंशन होगी। ड्यूरिंग दिस ऑपरेशन द टेम्परेचर ऑफ
from T to T minus dt when the pressure is decreased from P to P minus dP. जो वेपर स्टेट में था, यहाँ पर प्रेशर जो है वेपर्स का P से P माइनस dP कर दिया जाएगा, P से P माइनस dP कर दिया जाएगा और टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज होकर T से T माइनस dt हो जाएगा। तो सेकंड प्रोसेस हमारी कंप्लीट हो जाएगी। आइए थर्ड प्रोसेस की बात करते हैं। द वेपर्स आर नाउ कंप्रेस आइसोथर्मली एट कांस्टेंट टेम्परेचर T माइनस dt। अब वेपर्स को कंप्रेस किया जाएगा, L पॉइंट पर सब्सटेंस वेपर स्टेट में है और M पॉइंट पर सब्सटेंस जो है वो लिक्विड स्टेट में है। यहाँ पर कंप्रेशन यहाँ पर सब्सटेंस की और वॉल्यूम जिसकी वजह से V2 से V1 की तरफ डिक्रीज होगा, बट ये काम होगा कांस्टेंट टेम्परेचर T माइनस dt पर, क्योंकि M पॉइंट पर भी टेम्परेचर T माइनस dt है और L पॉइंट पर भी टेम्परेचर T माइनस dt है। Let the heat rejected to the sink in this process is L minus DL। हम मान लेते हैं कि आइसोथर्मल कंप्रेशन में सिस्टम ने कुछ हीट जो है सिंक को रिजेक्ट की है और वो अमाउंट है L minus DL। जब भी कंप्रेशन होता है आइसोथर्मल कंप्रेशन, तो हमारा इंजन जो है या सिस्टम जो है वो सिंक को हीट रिजेक्ट करता है। L हीट एब्जॉर्ब की गई थी और L माइनस DL हीट जो है वो दी गई है सिंक को, ताकि हमारा जो सब्सटेंस है वो लिक्विड जो वेपर स्टेट से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो सके। तो इस केस में उसे क्या करना पड़ेगा, अपनी हीट जो है सिंक को लूज करनी पड़ेगी। तो स्टूडेंट्स कितना वर्क करना पड़ेगा हमें सिस्टम के ऊपर, ताकि हमारा सिस्टम जो है वो वेपर स्टेट से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो सके, वो कितना करना पड़ेगा। अगर आप L में से L माइनस DL माइनस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, DL मिलेगा। इतनी हीट एब्जॉर्ब की थी, इतनी हीट दे दी, तो वर्क डन कितना हुआ, L माइनस DL इतना वर्क डन होगा। तो दोनों को माइनस करके आपको DL मिलेगा। ये हमारा यूजफुल वर्क होगा जो हमने सिस्टम के ऊपर किया है, सब्सटेंस के ऊपर किया है, ताकि वो वेपर स्टेट से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो सके। सो दैट हीट कन्वर्टेड टू वर्क इज L माइनस DL। जितनी हीट एब्जॉर्ब माइनस जितनी हीट रिजेक्ट कर दी सिंक को L माइनस DL, तो दोनों को माइनस करोगे तो DL मिलेगा। दैट विल बी इक्वल टू वर्क, जितनी हीट जो है वर्क में कन्वर्ट हुई है। तो स्टूडेंट्स एक प्रोसेस और बात की हम डेरिवेशन हम करेंगे आने वाले सेक्शंस के अंदर। तो स्टूडेंट्स आइए आगे बढ़ते हैं। लास्ट सेक्शन में हमने देखा कि सिस्टम जब आइसोथर्मल कंप्रेशन करेगा तो कितनी हीट जो है वो रिजेक्ट करेगा सिंक को, L माइनस DL। यहाँ पे आपको साफ साफ लिखना है। एक्चुअली आपको ये डायग्राम नहीं बनाना, आपको एग्जाम में सिर्फ ये डायग्राम बनाना है, सिंगल डायग्राम बनाना है। ये वाला जो मैंने कार्नोट इंजन बनाया था वो भी नहीं बनाना, जो स्टार्टिंग में हमने कंटेनर्स बनाए थे वो भी नहीं बनाना। आपको सिर्फ एक डायग्राम बनाना है, ये वाला अच्छे से बड़ा सा है, आपको अच्छे से डायग्राम बनाना है, सिर्फ एक ही बनाना है। तो L माइनस DL जो थी वो हीट रिजेक्ट की गई थी सिंक को ड्यूरिंग आइसोथर्मल कंप्रेशन, और आइसोथर्मल एक्सपेंशन को ली गई थी सोर्स से, इंजन के द्वारा L हीट ली गई थी। तो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं फोर्थ प्रोसेस की बात करते हैं। द लिक्विड नाउ कंप्रेस्ड एडियाबैटिकली अलोंग MB टिल इट अगेन अटेन्स द ओरिजिनल प्रेशर एंड टेम्परेचर गिवन बाय P and T रिस्पेक्टिवली। तो स्टूडेंट्स MB के अलोंग लिक्विड जो है वो एडियाबैटिकली कंप्रेस करेगा, ताकि दोबारा से इसका प्रेशर M से B तक पहुंच जाए, मींस P माइनस DP से P हो जाए और टेम्परेचर T माइनस DT से T हो जाए। तो स्टूडेंट्स आइए आगे देखते हैं। द एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन इज गिवन बाय ईटा इज इक्वल टू, किसी भी इंजन की एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है अमाउंट ऑफ वर्क डन, अमाउंट ऑफ यूजफुल वर्क अपॉन कितनी हीट जो है वो सोर्स से ली गई थी, दैट इज Q। तो स्टूडेंट्स ईटा इज इक्वल टू dW बाय Q। यहाँ पर हमने अमाउंट ऑफ यूजफुल वर्क जो लिया था वो dW लिया था, और जो हीट जो है सोर्स से जो एब्जॉर्ब की है हमारे सब्सटेंस ने वो कितनी एब्जॉर्ब की थी, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन के बराबर ली थी, L के बराबर। तो यहाँ पर L लगा देंगे, तो ईटा इज इक्वल टू dW बाय L, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन होगी। और हम जानते हैं कार्नोट इंजन की जो एफिशिएंसी होती है वो सिर्फ सोर्स और सिंक के टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। ईटा इज इक्वल टू हमें पता है कार्नोट इंजन के क्या होता है, 1 माइनस T2 बाय T1 होता है। T2 जहाँ पर सिंक का टेम्परेचर है और T1 जो है सोर्स का टेम्परेचर है। हमारे केस में जो सिंक का टेम्परेचर हमने लिया था वो कितना लिया था, T माइनस DT लिया था, और सोर्स का टेम्परेचर T1 कितना लिया था, T लिया था। अगर आप एलसीएम लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, T ऊपर चला जाएगा, T माइनस T प्लस DT बाई T हो जाएगा, तो ये सॉल्व कटिंग करके आ जाएगा, T से T कट जाएगा तो DT बाई T आ जाएगा। ये सेकंड इक्वेशन होगी। फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर कर लेते हैं। फ्रॉम 1 and 2 वी गेट dW बाई L, ये भी एफिशिएंसी है, ये भी एफिशिएंसी है। dW बाई L इज इक्वल टू DT बाई T। तो स्टूडेंट्स इसके बाद हम dW की वैल्यू निकालेंगे और यहाँ पुट करेंगे तो आपको क्लॉस्टेड-क्लैपेरॉन इक्वेशन मिल जाएगी, वो देखेंगे हम आने वाले सेक्शंस के अंदर। तो आइए स्टूडेंट्स बढ़ते हैं आगे। लास्ट सेक्शन W by L equal to DT by T, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, हमें W निकालना है। हमें पता जो एरिया अंडर कार्नोट साइकिल होता है वो हमें यूजफुल देता है, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं 3 of this
पेपर के अंदर। तो हमें DW निकालना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो कार्नोट साइकिल BCLMB, यहाँ भी देख सकते हैं हम BCLMB, इसके अंदर जो एरिया आ रहा है वो हमें निकालना पड़ेगा, तो DW मिल जाएगा। ये रेक्टेंगल बन रहा है, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ कितनी है, BC है, और ब्रेड्थ कितनी है, CL है, और BC कितना होगा आपके पास, V2 माइनस V1 लिख दिया। और CL कितना होगा, C पॉइंट पर प्रेशर कितना है, C पॉइंट पर प्रेशर है P, L पॉइंट पर प्रेशर कितना है, P माइनस DP। तो आप P में से P माइनस DP माइनस करेंगे तो आपको CL की वैल्यू मिल जाएगी, मींस CL आपको DP मिलेगा। तो स्टूडेंट्स DW की वैल्यू आ गई हमारे पास V2 माइनस V1 इंटू DP। इस रेक्टेंगल का एरिया आ गया, इस साइकिल के अंदर जितना एरिया आ रहा है वो ये आ गया, वो हमें DW की वैल्यू देता है। ये इंपॉर्टेंस होती है कार्नोट साइकिल की, तभी हम PV डायग्राम ड्रॉ करते हैं किसी भी कार्नोट साइकिल, ताकि हमें जो यूजफुल वर्क मिल सके उसका एरिया कैलकुलेट करके। तो स्टूडेंट्स ये सेकंड इक्वेशन होगी, सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट में डाल देते हैं। यूजिंग 2 in 1 V2 माइनस V1 DP अपॉन L, DW की वैल्यू पुट कर दिया, अपॉन में L इक्वल टू DT बाय T, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके DP बाय DT की वैल्यू आ जाएगी L अपॉन T V2 माइनस V1। यही तो है आपकी क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन। तो स्टूडेंट्स ये आ गई आपकी डेरिवेशन। इसके बाद 2 पॉइंट्स और बचे हैं, वो हम देखेंगे आने वाले सेक्शंस के अंदर। तो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट सेक्शन में हम क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन ड्राइव कर चुके हैं, जो कि निकल के आती है dP by dt is equal to LT into V2 minus V1। अब हम इस इक्वेशन का सिग्निफिकेंस और यू कैन से एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे, एप्लीकेशंस और सिग्निफिकेंस ऑफ क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन। फर्स्ट, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर ऑन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड। प्रेशर के चेंज करने पर किसी भी लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट पर क्या इफेक्ट पड़ता है, आइए वो डिस्कस करते हैं। जब भी किसी लिक्विड को वेपर स्टेट में कन्वर्ट किया जाता है, गैसेस स्टेट में, तो उसका वॉल्यूम जो है हमेशा बढ़ता है, क्योंकि गैसेस स्टेट में वॉल्यूम ज्यादा रहेगा, लिक्विड स्टेट में वॉल्यूम कम रहेगा। ये तो ऑब्वियस है, अंडरस्टूड है। सो हमारा V2 होगा फाइनल वॉल्यूम गैसेस स्टेट का, वो इनिशियल वॉल्यूम V1 मींस लिक्विड स्टेट के वॉल्यूम से ज्यादा होगा, तो उस केस में V2 जो है V1 से बड़ा होगा। V2 माइनस V1 जो है एक पॉजिटिव क्वांटिटी होगी, तो DP बाय DT भी पॉजिटिव होगा। कहने का मतलब ये है कि जो प्रेशर बढ़ाने पर लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट हमेशा बढ़ता ही बढ़ता है, एंड वाइस वर्सा। तो स्टूडेंट्स यही कुछ लिखेंगे आप इसमें। When a liquid is converted into vapors, then volume of vapors V2 is always greater than volume of liquid V1। जब भी आप किसी लिक्विड को वेपर्स में मींस गैसेस स्टेट में कन्वर्ट करते हैं, तो वेपर्स का मींस गैसेस स्टेट में जो वॉल्यूम होता है V2 वो हमेशा लिक्विड के वॉल्यूम V1 से बड़ा होता है। दैट इज V2 माइनस V1 इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। तो V2 माइनस V1 जो है पॉजिटिव क्वांटिटी होगी, जिसकी वजह से इक्वेशन 3 से ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 3 DP का पॉजिटिव क्वांटिटी निकल रहा है D by dt। तो कहने का मतलब क्या है, इट मींस दैट विद इंक्रीजिंग प्रेशर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सब्सटेंस इंक्रीजेस एंड वाइस वर्सा। मींस प्रेशर बढ़ाओगे तो सब्सटेंस का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, और इसका उल्टा करोगे तो उल्टा होगा। प्रेशर डिक्रीज करोगे तो सब्सटेंस का बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होगा। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट एप्लीकेशन कंप्लीट हो गई है, एक और एप्लीकेशन बची है, वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स लास्ट सेक्शन में हमने देखा कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है लिक्विड्स का, वो प्रेशर इंक्रीज करने के साथ इंक्रीज होता है, एंड वाइस वर्सा। आइए डिस्कस करते हैं सेकंड एप्लीकेशन ऑफ क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन। तो आप हेडिंग बनाएंगे इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर ऑन मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ सॉलिड। देखिए स्टूडेंट्स, सॉलिड जो है 2 प्रकार के होते हैं। एक ऐसे सॉलिड्स होते हैं जिनको अगर हम गर्म करें तो उनका वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज होता है। फॉर एग्जांपल आइस को हीट करने पर उसका वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज होता है। और उसका ऐसे होते हैं जैसे कि वैक्स, जिनको अगर आप हीट करें तो उनका फाइनल वॉल्यूम जो है वो बढ़ जाता है हीट करने के बाद। तो इन्हीं 2 चीजों को ध्यान में रखते हुए हम निकाल